Hello, Avik Dada. I'm very happy and glad to see you after 4 years, 4 long years. And I'm fortunate to have you on Import Hub. Hello, Antaji. So, Dada, I've been following your research work, and I must say that you are the Thank shining you. star and rising star of 2011 batch. And you have written more than 18 A category, and you are a reviewer of 54 journals. And you are a novelist, you are a chef, you are a writer, you are a painter, you are so much. Have you ever thought that you will come on Anita Sharma show? Honestly speaking, Antaji, I have never thought that I will come in the Sharma show. Because honestly, I have never thought that someday I will be giving an interview. So that is why when you just told me about that you want to interview me, I was like, that was a quite enthralling experience कि मतलब okay, so now perhaps I have done something good, so because of which Antaji is going to interview me. And Antaji, see, you are, Antaji, an inspiration. I mean, you are quite more than a batchmate for me. So Antaji, so when you just sent me the invite, I was like, I can't let this opportunity go. It's a pleasure, Dada. वैसे I have not done anything, but it's just that I feel something which I am not able to do in terms of research. I should bring those stories which are inspiration in itself. So yours is one of them, and I'm very proud and happy to share to the rest of the world that Avik Sinha is my batchmate. We shared very strong camaraderie. ओके सो आपने अपना इंजीनियरिंग करा देन एमबीए करा देन फेलोशिप किया इकोनॉमिक्स एरिया के अंदर currently you are working with the Goa Institute of Management. So how things changed after your FPM and what are your experiences at your working in as a teacher, as a researcher, as an administrator now at Goa Institute of Management? Antaji, honestly speaking, FPM के बाद my experience was not that good. Mm-hmm. I mean, actually, not it was not that good. Actually, very very bad. Mm-hmm. हाँ, क्योंकि अंतर जी जैसे देखिए, एफपीएम करते करते मेरे पास कुछ अच्छे पब्लिकेशंस आ गए थे. एंड वो लेके अंतर जी, व्हेन आई अप्रोच सेवरल इंस्टीट्यूट्स फॉर इंटरव्यूज एंड अंतर जी, एंड यू कैन बिलीव, ये आज मैं जहाँ पे हूँ, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, perhaps this is my 45th or 47th interview. ये सर जी, मतलब कि जैसे कि जब मैं बहुत सारी जगह पे वहां पे जब मैं इंटरव्यू के लिए अप्लाई करने गया, एंड इन फ्रॉम सम इंस्टीट्यूट्स आई गॉट दिस वेरी रिप्लाई कि अगर इस बंदे को हमने रिक्रूट कर लिया तो ये डिपार्टमेंट में कंपटीशन लाएगा जो हम नहीं चाहते. तो उस तो समटाइम लगता है जी कि मेरे खुद के परफॉर्मेंस वेंट अगेंस्ट मी. Mm-hmm. हाँ, और जैसे देखिए, जब मेरा डिफेंस हो गया इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, तो उस टाइम पे भी आई डेंट हैव एनी जॉब. So तो उस टाइम पे बैठा 2000, you are talking about 2015 February. 2016, Okay. 2016 February. I think it was 2016 7th of February. Okay. हाँ, ये डेट अभी याद है वो. हाँ, तो 7th February को मेरा देखिए डिफेंस हो गया. तो उस टाइम पे भी कोई जॉब नहीं है. अब ये देख रहा हूँ कि उस टाइम देखिए हम लोग का स्टाइपेंड भी बंद हो गया है, कॉन्वोकेशन का डेट डिक्लेयर हो गया, हाथ में सिर्फ 1 महीना है. तो आई वाज गोइंग कंप्लीटली मैड कि हाथ में जॉब नहीं है, कुछ नहीं है. अब मैं व्हाट आई विल डू. तो देखिए उस टाइम पे मेरे पास एक स्टार्टअप कंपनी से ऑफर आया. Mm-hmm. उसका नाम था अचेंद्री. इट वॉज ए पार्ट ऑफ द कैरियर लॉन्चर्स ग्रुप. तो उन लोगों का बहुत ही अजीब सा एक ऑफर था कि हम लोग यहाँ पे रिसर्च मेंटर पोजीशन के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, एंड वी वांट टू सी अ गुड पब्लिकेशन लिस्ट इन द कैंडिडेट प्रोफाइल. तो मैंने कहा, देखा अभी हाथ में कुछ है नहीं, तो चलो यहीं पे अप्लाई मारते हैं.
तो अप्लाई मारा, इंटरव्यू हुआ एंड इवेंचुअली आई वाज सिलेक्टेड। तो वहां पे मुझको बोला गया कि दिस इज ए काइंड ऑफ ए रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल दैट। जिस दिन मैंने जाके वहां पे ज्वाइन किया तो देखा कि माय जॉब वाज ए काइंड ऑफ ए बिजनेस डेवलपमेंट, सो व्हिच आई डिडंट एक्चुअली एक्सपेक्ट। तो मतलब कि और उसके बाद से देख देख रहा था कि ग्रेजुअली व्हेन द डेज आर ग्रेजुअली मूविंग, every employee working in this organization was given a target, and the target was quite peculiar. Target was as in कि सपोज मैंने एक बिजनेस स्कूल को मैंने अडॉप्ट किया इन द सेंस कि इस एचएमजी के साथ बिजनेस स्कूल का एक टाई अप हुआ और उनको बोला गया कि आपके जो एमबीए स्टूडेंट्स हैं उन एमबीए स्टूडेंट्स के लिए we will train them so that they can write research papers, and they सोचिए जी MBA students से research paper, you can imagine how difficult it can be। तो देखें जी कि अब मैंने उन लोगों को कहा था कि देखो कि इस तरह से बच्चों को ट्रेन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट दे वर नॉट रेडी टू गिव द टाइम। और वहां पे उस टाइम पे ये भी सुनने में आया था कि सीएल एजुकेशन अभी कंपनी को पूरी तरह से टेक ओवर कर लेगा, तो शायद यहां से जॉब कभी भी जा सकती। सोचिए, एंड दैट वाज माय नियरली 7th और 8th मंथ। अब देखा कि मैं अब ये बल्कि बहुत मुश्किल से ये एक जॉब मिला, ये भी हाथ से निकल जाएगा। दूसरा जॉब ढूंढना स्टार्ट किया, बहुत सारी जगह पे इंटरव्यूज दिया। देन आई गॉट इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया एसकी में, हैदराबाद में। एट माय 11th मंथ आई लेफ्ट दैट स्टार्टअप कंपनी, जॉइंड एसकी। वहां पे जाके देखा कि द ट्रबल हैज एक्चुअली इंक्रीज्ड। ट्रबल इंक्रीज हो गया तो मतलब वहां पे एवरी फैकल्टी हैज टू ब्रिंग बिजनेस, जो मुझको पहले से मालूम नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो ये अच्छा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, काम करने का मौका मिलेगा, बट आई वाज नॉट नोइंग कि रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि आपको खुद बिजनेस लेके आना होगा। तो अब देखिए, मैं एक बिल्कुल ही फ्रेशर बंदा हूं, बिजनेस लेके आना होगा एज इन, हाँ वो मैं आपको बोल रहा हूँ। तो बिजनेस लेके आना एज इन के आपको डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज या कॉर्पोरेट हाउसेस, उन लोगों के पास जाके उन लोगों को अप्रोच करके उन लोगों से गवर्नमेंट प्रोजेक्ट और ट्रेनिंग्स लेके आना है। अब देखिए, जो लोग थोड़ा सीनियर फैकल्टी मेंबर्स है, उनके ऑलरेडी कॉन्टैक्ट बिल्डअप हो चुके हैं, उनका ऑलरेडी रेपुटेशन बिल्डअप हो चुका है, उनके लिए लाना बहुत ही आसान है। मैं फ्रेशर बंदा हूं, मुझे कोई पहचानता भी नहीं है, मैं जस्ट एसपीएम करके स्टार्टअप में काम करके मैं ज्वाइन किया है। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो थैंक्स टू माय सेंटर हेड, मैं पहले साल किसी भी तरह से धक्के खाते हुए मैं निकाल दिया, बट आई वॉज नॉट एबल टू मीट अप माई टारगेट्स। तो देखा कि अब टेंशन हो रहा है कि मेरा कॉन्फर्मेशन होने वाला था इन द मंथ ऑफ जनवरी, मेरे पास कॉन्फर्मेशन लेटर नहीं आ रहा है। तो आई वॉज मतलब कि सोचे थे जी, मैं हर रोज उस टाइम पे ऑफिस जा रहा हूं ये सोच के कि शायद आज ही मेरा ऑफिस में लास्ट डे है। फाइनली माय सेंटर हेड strictly intervened in the matter and somehow I got a narrow escape. Okay. तो सेकेंड ईयर में देखा कि भाई अब तो कांटेक्ट कुछ ही तरह से बिल्डअप करना ही होगा। तो बहुत जोर लगा के मैंने अपना एक क्लाइंट बनाया। उस क्लाइंट के थ्रू मैं कुछ प्रोजेक्ट लाने की कोशिश किया। दैट टाइम सडनली हम लोग का जो बिजनेस डेवलपमेंट टारगेट था दैट गॉट नियरली ट्रिपल्ड। माय गॉड। यस। तो देखा कि अब मैं पागल हो जाऊंगा, इस प्रेशर में मैं नहीं रह सकता। तो फिर से वही था जी, फिर से इंटरव्यू देने का सिलसिला चालू हुआ। तो करते करते तो मुझको यहाँ पे गोवा स्टॉक मैनेजमेंट से इंटरव्यू कॉल आ गया। तो मैं ठीक है पे इंटरव्यू दे के आया। तो वहां पे आई वॉज इन वेट लिस्टिंग। तो वेट लिस्टिंग में होगा कि अब यहाँ पे मतलब कि मेरा ऑफर कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, आई डोंट हैव एनी आइडिया। तो उस टाइम पे मुश्किल से बैंगलोर के एक बहुत ही छोटा एमबीए कॉलेज था, उसका नाम है एक्ट्रा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वहां पे मुझे एक ऑफर मिल गया। मैं कहा चलो ठीक है, एटलीस्ट ब्रांड छोड़ो, कुछ भी छोड़ो, यहाँ पे निकलते हैं।
फिर से तो हम हैदराबाद छोड़ के निकल गए बैंगलोर। देखिए अनिता जी, वहां पे ये था कि दैट इंस्टीट्यूट वाज नॉट ए वेरी ग्रेट इंस्टीट्यूट, बट अनिता जी स्टूडेंट्स काफी अच्छे थे। स्टूडेंट्स काफी मजेदार स्टूडेंट्स थे, एंड द फैक्ट एंड अपने मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में जो कॉलीग्स थे, आज भी उन लोगों को सोचता हूँ, बहुत ही मिस करता हूँ कि अच्छा। वो लोग बेहतरीन लोग थे एकदम। तो 5 महीने वहां पे काम करने के बाद मेरे पास जीएम से ऑफर कॉन्फर्म हो गया, तब मैं जाके जीआईएम आया। हम्म। तो अनिता जी ये था मेरा एफपीएम के बाद की जर्नी। और अनिता जी देखिए, और इन सब के बीच में साइकोलॉजिकल प्रेशर, साइकोलॉजिकल टेंशन अनिता जी इतना ज्यादा हो गया था। आई स्टार्टेड डेवलपिंग, मतलब कि सर्टेन डिजीज। My wife Tanaya, she was almost about to lose her life. उसको इतना बड़ा प्रॉब्लम आ गया, and because of that we lost our first child. This was my experience after SPM. सोचिए आज जेएम में एंटर जी हूँ, अभी मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि तेरे पास अभी इतना अच्छा पब्लिकेशन हो गया, व्हाई डोंट यू अप्लाई इन आईएम्स। मैं कहा भाई देख, जेएम में काम करके मैं रात को शांति से सो सकता हूँ। हाँ, अब जो शांति की नींद मुझको पिछले 4 साल में नहीं मिला, आज जाके मुझको मिल रहा है, एंड आई डोंट वांट टू लूज इट एट एनी कॉस्ट। This is something which is very, very overwhelming for me as well, to hear what you went through, what you have experienced in last 4 years. I believe that we all should be together, and we all should help each other. But Yes, we are so much lost in this rat race to be a yes, part of that system. First, second, we want to prove our point that we are from IIM system, so we should be in the IIM system only. So that is, yes, people like you are breaking this myth that it is not needed to be in the IIM system. If you are doing good research, if you are a good teacher, if you are happy what you are doing, I think that makes our life a meaningful life, and that's what we all are there for. yeah, definitely, मतलब कि at the end it is very much needed to be happy। Yeah, yeah, मतलब क्या होता है जी, absolutely. हाँ, मतलब कि मेरे पास सैलरी आएगा पर मैं उस सैलरी को एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अनिता जी, आई हैव सीन द डेज वेयर जॉब सेटिस्फेक्शन वाज ए डिस्टेंट लग्जरी फॉर मी। मतलब कि महीने में सैलरी आ रही है, बस खुश है, सैलरी कम से कम आ रही है, क्योंकि नहीं पता कि कल वो सैलरी आएगी भी या नहीं। सही बात है। आई एग्री, आई तो अंकल जी टोटली एग्री। आज, हाँ, तो अंकल जी आज वो जो जॉब सेटिस्फेक्शन है अंकल जी, वो शायद किसी दूसरे इंस्टीट्यूट मुझे नहीं दे सकता। I think, Dada, let's move ahead. When you joined Goa Yes, yes, Institute of Management, very recent Facebook update I saw, wherein some GIF was made on you. What was it all about? And yes, yeah, so this is the GIF, which हाँ, students of Section C PGP batch 2021 made on Professor Avik Sinha. So what was it all about, that expression and all? हाँ, ये मतलब कहते जी, that actually that was a part of my life class। हाँ, तो once I was taking the class and suddenly there was some network issue, I was having a discussion with the students, that network went off। Huh. And perhaps that was the second time during the session that network went off. I was completely pissed off। Ananta ji, you can believe, perhaps that day I was teaching game theory। गेम थ्योरी के पे ऑफ मैट्रिक्स एक्सप्लेन करने के बीच में नेटवर्क वेंट ऑफ। दिमाग खराब हो गया था एकदम, आगे क्या हो रहा है ये करके। हाँ, हाँ, एंड दैट वीडियो, एंड आई वाज नॉट नोइंग कि ये, आई मीन व्हेन आई एम डूइंग दैट, स्टूडेंट्स आर एक्चुअली एबल टू सी इट। तो जब पूरे क्लासेस सब कुछ खत्म हो गया, तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स शेयर दैट विथ मी कि सर, हाँ, you know sir, when Dhoni will miss a six, what will be his reaction? What will be his reaction? He showed me the GIF, sir, ऐसा होगा।
आई वॉज लाफिंग लाइक, भाई ये तो मेरे फेसबुक पोस्ट पे पक्का जाएगा। हाँ, मतलब कि क्लास खत्म होने के बाद कुछ स्टूडेंट अगर इतना मजेदार गिफ्ट अगर कोई देता है, आई विल keep it with me for the rest of my life. Yeah, it was so amazing. I saw it, and I also laughed at it. Like what Amik Dada is doing it. This is Amik Dada only, and nobody else can do. You you are known for your temperament, but you are a cool professor, I must say. ये संजय जी, ये मतलब कि हाँ, ये बात तो संजय जी कि मुझको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाती है। That I know. Okay, Dada, one more thing which I would like to ask, how this sustainable development goal research space evolved over a period of time. Why did you shift from your original research to this space? देखिए जी, actually I didn't shift completely. My work was on environmental economics. Okay, and अब देखिए जब मैं when I was working on this field, environmental economics, I was finding out that whatever I do, I am not able to give a proper policy level justification for my work. And that was the time, Antaji, quite luckily, in ASCII, I got a chance to talk to some of the faculty members who were working on SDGs. ये SDG, हाँ, what is the SDG? Then some of the faculty member explained me कि we see this sustainable development goals, 17 गोल होता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे मतलब कि सब गोल्स होता है, ये एक्चुअली लार्जर सस्टेनेबिलिटी चीज को एड्रेस करता है। तो मैंने एक दो मतलब कि मैं एक दो प्रोजेक्ट पे मैंने उन लोग को अनऑफिशियली मैंने उनको असिस्ट किया कि देखने के लिए व्हाट इज दिस एग्जैक्टली। तब जाके देखा कि भाई इसमें तो काम करने का स्कोप बहुत ज्यादा है, और मैं एक्चुअली जिस लाइन पे रिसर्च कर रहा हूं, आई कैन एक्चुअली ट्विक माय रिसर्च एरिया अ लिटिल बिट, ताकि मैं उन पूरे चीजों को मैं यहाँ पे लेके आ सकूं। और वहां पे एक और फैकल्टी मुझको मिल गया जिन्होंने मुझको सिखाया कि अभी जो कोई गवर्नमेंट के लिए जब तुम कोई पॉलिसी प्रिस्क्राइब करोगे, तो वो पॉलिसी प्रिस्क्राइब करते टाइम तुम एक लार्ज पॉलिसी फ्रेमवर्क किस तरह से बनाओगे। तो वो पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना जब मैंने सीखा, अब वो पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना, और वहां पर एसडीजी को थोड़ा मैं सीख रहा था, और यहाँ पे मेरा खुद का रिसर्च, तीन चीजों को मैं एक जगह पे लाके जोड़ दिया। कि अब मैं क्या करता हूँ कि देखा कि अब मैं वो एसडीजी के जब मैं देखे 17 गोल्स है, अब देखे मैं 17 गोल्स से मैं काम नहीं कर सकता, मैं काम कर रहा हूँ एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स के ऊपर। अब देखे उसमें से एक है एसडीजी 13 जो है क्लाइमेट एक्शन, और है एसडीजी 7 जो बेसिकली क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी पे काम करता है। ये दो एरिया जिस पे मैं काम कर सकता हूँ। देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग दोस टू एरियाज इन डेप्थ। अब फॉर लास्ट 3 years नाउ आई हैव ग्रेजुअली, मैं अपना जो रिसर्च राइटिंग का बोलिए या मेरा जो ऑब्जेक्टिव, सब कुछ मैं एसडीजी के प्रोग्रेस रिपोर्ट के मुताबिक मैं डिजाइन करता हूँ। Can you share any paper from your research work around this, the framework or anything which you have developed working on these 2 sustainable development goals, so that the audience can go and check? Actually, if you just 18 A category public, I think out of those all 18, I think there are 10 to 12 works on this line only. Actually, they can check one of the works. My first work published in technological forecasting and social change, and the work was on how the distribution of energy innovation impacts the income distribution. Okay. हाँ, तो यहाँ पे मंत्र जी मैं सिर्फ एसडीजी 7 के ऊपर मैंने फोकस किया था कि जब एनर्जी इनोवेशन के डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन इनकम इनइक्वालिटी को, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरह से इंपैक्ट कर रहा है। कि सोचिए अगर कोई कंट्री बहुत ही ज्यादा इनोवेशन ओरिएंटेड है, तो क्या वहां पे कैपिटल के एक्युमुलेशन हो रहा है? अगर कैपिटल के एक्युमुलेशन हो रहा है, तो वहां पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ही मतलब कि अनकंपेरेबल हो जाएगा। वो एक जगह पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही स्क्यूड हो जाएगा। उस चीजों को मैं उस तरह की चीजों को मैंने इस काम में देखा है। या जो मेरा लेटेस्ट वाला काम है जो जर्नल ऑफ प्रोडक्शन पे आया था, दैट इज आल्सो ऑन द सेम लाइंस, ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के ऊपर।
जानवर स्पिनर प्रोडक्शन के मेरे पब्लिश किए हुए पिछले 5-6 पेपर्स हो गए, या टेक्नोलॉजिकल फोरकास्टिंग सोशल चेंज में जो 2 पेपर पब्लिश हुए वो, या जो मेरा रिसेंट पेपर अभी आया इन एनर्जी पॉलिसी, उसको वो काम तो स्पेसिफिकली इंडिया के ऊपर ही है। तो इन सारे काम में वो एसडीजी के ऊपर ही है एकदम। मतलब अगर रीडर्स चाहते हो इनसे कोई भी एक पेपर को वो रेफर कर सकते हैं। I'll share the link here in the Yes. description box of the YouTube channel, YouTube video, so that they can have a look at all the papers. And I would like to know, how do you celebrate your failures? Because I know you are a person who celebrates failures. So how do you do that? अंतर जी देखिए, फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन आई हैव टू गो बैक अ लिटिल बिट। अंतर जी जैसे देखिए, जब भी आप कोई काम करते हो, अगर आपको उसमें सक्सेस मिलता है तो लोगों को लगता है कि वो सक्सेस मिलना शायद बहुत ही आसान है। ये ओनली इन दिस 2020, इन दिस 11 months I have published 20 to 23 papers in this year only. Oh my God! हाँ, Wow. तो अनिता जी, तो देखिए आप ये सिर्फ ये स्टैटिस्टिक्स अगर कोई देखेगा तो लोगों को लगेगा कि यार पेपर निकालना तो बहुत ही आसान चीज है। पर अनिता जी, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो कि वो हर एक पेपर कितने रिजेक्शन के बाद यहां तक आया है। मेरा फर्स्ट जो पेपर है इन एनर्जी पॉलिसी, दैट वाज आई थिंक आफ्टर कितने 18, 20 या 28 के आसपास रिजेक्शंस। Oh my God! Okay. हाँ, तो अनिता जी नो वन विल लुक इनटू दैट। तो मुझको देखिए, अगर ये 6 साल पहले जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे और उस टाइम की बात हो तो लोग यार इतना अच्छा काम किया, रिजेक्ट हो गया, ऐसे कैसे कर दिया। हाँ, आज अगर जी वो चीज आज वो फील नहीं होता। आज वो लगता है कि अच्छा पक्का मैंने कोई मिस्टेक किया होगा, या आप शायद मेरा काम थोड़ा बैकडेट हो गया है। तो जी इफ आई डोंट सेलिब्रेट माय फेलियर्स आई विल नॉट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। जब मैं जर्नल पेपर्स रिव्यू करना स्टार्ट किया तब मुझको समझ में आया कि व्हाट द रिव्यूअर्स एक्चुअली वांट टू सी। क्योंकि जब रिव्यू रिपोर्ट आता है तो मैं दूसरे रिव्यूअर कोई तब मैं एक दूसरे बंदे का पेपर को मैं देख रहा हूं एज एन आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव, कि इसमें मुझको गलतियां कुछ नजर नहीं आ रहा है, दूसरों को गलती कैसे नजर आती है। जब मैंने कहा ओके दे आर ट्राइंग टू पॉइंट आउट दिस थिंग, तब मैं अपने जो पिछले पुराने रिजेक्शंस लेटर थे वो मैं खोल के मैं बैठता हूँ। मैंने कहा हाँ भाई, इस बंदे ने तो यही चीज पे कहा था, उस टाइम में मेरे को बहुत ही गुस्सा आया था। हाँ, पर नहीं, अब उस चीज पे एक बार काम करके देखते हैं। तो अंतर जी उस तरह से अंतर जी चीजें इवॉल्व होने लगी। जैसे अंतर जी फॉर एग्जांपल आज मेरे जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन में 10 पेपर आ गए। पर वो 10 पेपर लाने के लिए आई हैड फेस्ड रिजेक्शन ऑफ नियरली 48 पेपर्स। माय गॉड। ओके। तो जी सबको वो दिखता है कि 10 पेपर आ गया, पीछे का 48 कोई नहीं देखता है जी। माय फोकस इज टू वो 48 को देखो। वो 48 है इसीलिए आज ये 10 है। अगर वो 4 होता तो आज ये 0 होता। इतना सब कुछ मैनेज करने के लिए आप ये एनर्जी कहाँ से लेके आते हैं? व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस एनर्जी लेवल? Anita ji, more than the energy, I will say, Anita ji, it is my anger. मेरे गुस्सा मेरे पेपर पे निकलता है अनिता जी। पर अनिता जी जब ये बैड फेस चल रहा था तो अनिता जी बहुत से लोगों ने अनिता जी, इवन आई विल डोंट से दोस नेम्स, पर मेरे बहुत सारे अपने एफटीएम के बैचमेट्स, हाँ यार मैं तो आज यहाँ पे बहुत पैसे कमा रहा हूं, तू क्या कर रहा है? अनिता जी आई हैव हर्ड दिस कमेंट्स। तो अनिता जी उस टाइम लगा था कि जिस दिन मुझको जिंदगी में मतलब कि मैं अपने आप को कुछ अच्छा प्रूफ करके तब छोड़ूंगा। तो अनिता जी ये बोल सकते कि उस गुस्से को अंदर पालते पालते अनिता जी आई डिडंट नो व्हेन इट बिकम माय सेकंड सेल्फ। तो अनिता जी नाउ अभी मुझे कहते हैं कि more than the inspiration, that fire of rage actually drives me. कि
कि अगर बोल रहा कि मुझे ये करना है तो मैं ये करके दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। You are at a wonderful place. Goa, it's like a dream for every Indian to be there. आप वहीं बैठे हैं। यस। ये सब तो खत्म हो गया कि कौन सा IIM कौन सा IIT. I guess you are already at that place where everybody wish to be. So I'm very happy and glad. दादा ऐसे ही publish करते जाइए. You decide your retirement year and I will do your interview again. जिस दिन तो जी देखिए जिस दिन सोचिए अगर मैंने रिटायरमेंट किया, उस दिन सोचिए ये रिसर्च वगैरह सब कुछ बंद, अपना खुद का एक बहुत मतलब कि बहुत लॉन्ग चेरिश्ड ड्रीम है अपना, हाँ, और मैं क्या और बताइए? मेरी वाइफ एक छोटा सा रेस्टोरेंट कम लाइब्रेरी खोलेंगे। शाबाश। और मैं वहीं पे ही अपना इम्पोर्ट हब के ऐसे इंटरव्यूज लिया करूंगी। एक कॉर्नर दे देना। वहां पे आपके लिए एक सेपरेट स्पेस रख दीजिएगा, दिस इज द प्लेस रिजर्व फॉर अनिता जी, शी विल टेक ओनली इंटरव्यूज हियर। डन। वहां पे आपको पूरा बैकग्राउंड और सब कुछ सेट कर दिया जाएगा। पक्का दादा, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर दिस थैंक यू अनिता जी। interaction. I'm very happy and it's, yeah, I'm overwhelmed. I have no words further.